गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। यहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, पहले उसको समझना है, फिर उसके बाद पीपीटी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Rural entrepreneurship. Rural entrepreneurship has emerged as a dynamic concept. In general parlance, rural entrepreneurship is defined as an entrepreneurship emerging at village level which can take place in variety of fields of endeavors such as industry, business, agriculture, and act as a potent rural entrepreneurship in India. Actually, India is a country of villages. Almost 70% of this population is residing in villages, and they are dependent on their livelihood in those activities that are available at village level, be it a farming or any activities based on these farming like bee farming or poultry or something. सागर एंड गुरप्रीत, इमीडिएटली आप लोग रोल नंबर ऐड करिए, नहीं तो मुझे क्लास से भेजना पड़ेगा। These livelihoods are again since these are dependent on agriculture, and agriculture is dependent on many natural climatic conditions. So any flood or any natural disaster is again hampers the crop and the those occupation of that are dependent on local produce. Please करिए, so otherwise I if will you have to want make you to out. improve this level of income of these people, we must have something available in those areas in front of, like we discussed, rural entrepreneurship, any activities or any business generation enterprise in those areas, so that people are not moving out of villages for a search of livelihood in cities. And our Mahatma Gandhi has rightly said, poor of the world cannot be helped by mass production, but only by production by masses. Done, sir. That can be done at village level only. So we need to make efforts to utilize more and more resources locally, so that local people are employed in those activities, and they are earning those activities and making a country a success, a profit, a good self-sufficient country. So what we are going to do, coming slide is can be seen in these 6 parts. The first part we will discuss, define rural entrepreneurship, the 6M method of rural entrepreneurship, types of rural entrepreneurship, need for rural entrepreneurship, challenges of rural entrepreneurship, and the opportunities of rural entrepreneurship. So if we first discuss and try to understand rural entrepreneurship, so entrepreneurship which ensures value addition to rural resources in rural areas, engaging largely rural human resources. That means if we in India can more and more people of our villages, residing villages, that is our 70% of population, there are many activities then can be started to utilize this manpower available there. And if they can be there, definitely they can get involved in a value generation, more production, more services at local level, and our economy will definitely grow. So Class, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. What have you perceived from this video? Sir, as we know, our Indian economy is mainly dependent on agriculture. Yes, exactly. Very good. हम थोड़े साथ में वीडियो भी ऑन कर लें, ताकि मैं किसी को क्लास में अलाउ तो करूंगा नहीं, अटेंडेंस भी एक बार हो जाएगी। ठीक है, बी क्विक प्लीज। सारे जने वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, आप रिस्पॉन्स देते जाइए साथ में। हाँ चैतन्य, यू वर सेइंग समथिंग। Sir, as we know, our Indian economy is mainly dependent on agriculture. Okay. So rural and entrepreneur important in that. ठीक है, ठीक है। बाकी लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। अटेंडेंस सिर्फ उन्हीं की मार्क होती है जिनकी वीडियो ऑन होती है। ठीक है, मैं बार बार नहीं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली आप लोग एब्सेंट हो जाएंगे। हाँ जी रूपांगी, कितने % पॉपुलेशन कहा उन्होंने कि विलेजेस में रह रही है?
70%. रोहिणी बोल रही है, रूपांगी नहीं बोल रही। रूपांगी आप ठीक हो? आर यू वेल? कैन यू स्पीक? रूपांगी कैन यू स्पीक? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, रूपांगी इज नॉट, रूपांगी ने लगता है मुझे फोटोग्राफ लगा के रखी हुई है ऐसे कि सामने लगे सर ही है, मैं ही बैठी हूँ। रूपांगी आइस ब्लिंक करते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, आप फोटो लगा के बैठे हो, यहाँ से पता चलता है। रोहिणी, यू वर सेइंग समथिंग। सर उन्होंने एक और बहुत अच्छी चीज बोले कि इंडिया के लिए मास प्रोडक्शन से कुछ नहीं होगा, बट प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए कि सबको इन्वॉल्व किया। वेरी गुड, वेरी गुड। मास प्रोडक्शन से कुछ नहीं होने वाला, प्रोडक्शन बाय मासेस। वेरी गुड। सागर, सागर। एक्चुअली सर मैंने ना वीडियो सी नहीं की, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ठीक है। प्रकृति, सॉरी, परमजीत। सर मैंने भी वीडियो नहीं सी। ठीक है। रिफिका, रिफिका। सर मैंने वीडियो नहीं देखी। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, बस यही मैं एक बार आपकी आवाज सुनी। ईश्वन, सर मुझे वीडियो सुननी है। ठीक, हाँ जी, ठीक है। गुड गुड गुड, ऐसे ही चलता है। अंतिमा, अंतिमा। सर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की एग्रीकल्चर है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे मतलब चलो चलो rural वीडियो छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अंतिमा, ठीक है। वीडियो छोड़ते हैं जल्दी। बाकी लोग भी प्लीज अलर्ट रहिए, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस उसी बेस पे मार्क करता हूँ, अदरवाइज नो अदर वे। ठीक है। कुणाल, जब गांव की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में क्या चीज आती है? सर चीजें बहुत कुछ आती हैं। हाँ प्लीज प्लीज शेयर करते जाइए, मैं आराम से बैठा हूँ कंफर्टेबली। हाँ जी, जब गांव की बात होती है तो क्या चीज दिमाग में आती है सबसे पहले? सर विलेज वाले पीपल को रिसोर्सेज घट होते हैं वैसे। अच्छा, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जब गांव की बात होती है तो क्या चीज दिमाग में आती है? खेत है ना, लार्ज फील्ड, पोल्यूशन घट है, पोल्यूशन घट है। ओके, ਉੱਥੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਨੇ। ओके, एक्सीलेंट। ठीक है। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। काफी वेले रहते हैं। अब क्योंकि जो हम लोगों को रियल लाइफ दिखाती है ना, वही रियल लाइफ दिखाई देती है। अशनूर, हाँ जी सर। जब काम की बात होती है, ये गगनदीप सिंह एंटर करेगा विदाउट रोल नंबर, आई विल नॉट अलाउ। ये कोई गगनदीप सिंह है। हाँ जी, कोई फ्रेंड है इसको बता दो, रोल नंबर के बिना सर नहीं अलाउ करेंगे। अशनूर कहाँ गई? हाँ, अशनूर कैन यू हियर मी? अशनूर, मुझे जब गांव की बात करते हैं तो वहां पर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या दिखाई देता है? सर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। क्योंकि मुझे हम लोगों को ऐसे परसीव होता है कि उनके पास सिर्फ एग्रीकल्चर ही काम है और कोई काम नहीं है ना। सुबह 4 बजे उठते हैं, खेतों में पानी देने जाते हैं, ठीक है, पानी दिया, 7 बजे फ्री हो गए, घर आए, खाना खुना खाया, मक्की की रोटी, सरसों का साग, लाइक जो हम पंजाब के फिल्मों में देखते हैं वही हमें समझ लगती, ऐसा ही है ना। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, फिर सो जाते हैं। सर पर एक्चुअल योगेश वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, योगेश वीडियो ऑन करिए। थोड़ी मेरी मजबूरी है, हेलो हाय चलती रहेगी, एक एक बार आप लोगों की अटेंडेंस एक तरीके से मार्क करता हूँ। रूपांगी, आर यू देयर? यस सर। ये 4, 5, 6, 7 बजे काम कर रहा है, फिर ये क्या करते हैं ये लोग? सर ये मतलब लेबर भी, मतलब एज ए लेबर भी वर्क करते हैं। लेबर भी वर्क करते हैं कहाँ? ये जो आसपास, जैसे जो विलेज एरिया के आसपास फैक्ट्रीज वगैरह होंगी, वहां पे ये एज लेबर वर्क कर सकते हैं, या जो वुमेन होती है वो किसी के घर में एज वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जिन लोगों की अभी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है प्लीज मार्क करवाते जाइए। परमजीत, ऐसा है कि जब हम लोग गांवों की पिक्चर दिखाई देती है तो मैं फिल्मों में जो दिखाई देता है, खेत मीन्स बड़े सिंपल लोग हैं, ठीक है। परमजीत कैन यू हियर मी? तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। नहीं सुन रहे हैं सर। जब फिल्मों में हम लोग देखते हैं तो बड़े सिंपल लोग होते हैं वहां पर गांवों के, और सच बोलने वाले होते हैं, और उनके पास सिर्फ खेत ही होते हैं और बस, और कुछ नहीं है। अगर हम पंजाब का देखें तो पंजाब में क्या कल्चर है? पंजाब में गांव सुनाई देते तो क्या चीज दिमाग में आती है? आइल्स, टोफेल, कनाडा। हाँ ही चल रहा सर। तो वैसे सच तो सर कोई नहीं बोलता, तुसी बोल रहे सच बोलते हैं, वो तो रहने दो। नहीं नहीं, बोलो बोलो, सच बोलने के लिए ये दुनिया बनी है, बोलो।
नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਗੈरह वगैरह हाँ हाँ मैं क्या होता रहने दो टॉपिक को कोई अच्छा नहीं चलो बोल रहा चलो ठीक है ठीक है। आइल्स पंजाब देखे तो आइल्स समझ आती है, टॉफल समझ आती है। राजस्थान हरियाणा देखे तो जाट नजर आते हैं, है ना, जाट वगैरह। तो अगर बिहार यूपी देखे तो वहां बिल्कुल गरीब से मजदूर से समझ आते हैं, लेबर क्लास। हैं, लेबर क्लास समझ आती है। अब हमारा इंडिया जो है, कहते हैं कि जो हम न्यूज में भी सुने, इंडिया दो तरह का है, एक इंडिया है एक भारत है। ठीक है, इंडिया शहरों में बसता है, भारत गांवों में बसता है, ये हम लोगों को समझ लगती है। जो भारत है जहाँ हिंदुस्तान है वो गांवों में बसता है। और थ्योरी कहती है 70% पॉपुलेशन अभी भी विलेजेस में ही है। अगर 70% पॉपुलेशन विलेजेस में है तो उनके पास ऑक्यूपेशन क्या है, काम क्या है? ये लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग है। तो बहुत अच्छा, अगर हम देखें तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनको हेल्प कर रही है। तो ठीक है, आप लोग जिनकी अटेंडेंस होगी वीडियो ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या चीज समझ में आती है कि 70% गांवों में 70% पॉपुलेशन के साथ क्या चीज हो रही है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में, कि 70% लोग गांवों में रह रहे हैं। 75% ऑफ रूरल लेबर फोर्स स्टिल अर्न्स इट्स लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटी। अगर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखें तो बी जो है उसकी रेयरिंग भी काम कर रही है, कैटल रेयरिंग पे काम कर रही है, ठीक है, और अलग अलग ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हेल्प कर रही है, ये चीजों में आता है। पर मैंने अभी रिसर्च स्टडी करी विलेज इंडस्ट्री पर, कि विलेज इंडस्ट्री पे क्या है। तो पंजाब को मैंने स्टडी किया था, तो उसमें मैंने ये देखा था कि पंजाब के लोगों के पास बेसिक नॉलेज नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर बन सके। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब गांवों से जो इंडस्ट्री निकल के सामने आती है उसकी बात कर रहे हैं। 95% 75% लोग जो है वो उन लोगों के पास रोजगार नहीं है। अब पंगा यहाँ पर है, एक पीस ऑफ लैंड है, वहां पर पीस ऑफ लैंड पे सारे लोग टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए हैं? कोई रीजन हो सकता है इसके पीछे? उस पीस पे क्यों सारे के सारे लोग टिके हुए हैं? हाँ जी बोलिए, क्यों टिके हुए हैं उस पीस ऑफ लैंड पे? क्लास, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है आवाज। हाँ, क्यों ये लोग वहां पर जमीनों पे टिके हुए हैं? सर उनका ऑक्यूपेशन ही वो है, उनके पास उनका प्राइमरी जब मिल रहा ऑक्यूपेशन है, तब। साथ में वो अपने जमीन का हिस्सा नहीं छोड़ना चाहते। पंगा ये है। यस सर। तो इसके कारण वहां पर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट समझते हो? जहां पर बंदे तो 2 चाहिए पर लगे 5 हुए हैं। अब इसी कारण वो लोग आपको दिखाई देते हैं फ्री, क्योंकि एक पीस लैंड होल्डिंग छोटी होती चली जा रही है, हिस्से पड़ते चले जा रहे हैं। हिस्से पड़ने के कारण वहां पर लोगों के पास काम ही। यही एक रीजन था पंजाब का ट्रेंड कनाडा की तरफ हुआ था, कि जो लोग फ्री है उसको तो कनाडा की तरफ निकाल दें। ठीक है, कनाडा की तरफ निकाल दे, वो घर की हालत सुधार देगा। तो पंजाब जो बाहर की तरफ जा रहा था उसके पीछे क्या है? क्योंकि रूरल बंदे को काम नहीं मिल रहा। एक तो वो फिट नहीं हो रहा सिटीज में, क्योंकि उसके पास वो बेसिक स्किल्स नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पर उसके पास बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है। तीसरा जो है उसके पास वर्क नहीं है, काम नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण वहां पर जो रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जरूरत क्या है कि रूरल एरिया को डेवलप किया जाए, रूरल एरिया में इंडस्ट्री डेवलप की जाए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है उसने कोशिश की विलेज इंडस्ट्री और रूरल इंडस्ट्री सेटअप करने। मेरी एक रिसेंट अभी स्टडी भी पब्लिश हो रही है इस चीज पर। तो इंडस्ट्री जो रूरल एरिया में लोकेटेड है, और खादी विलेज इंडस्ट्री की बात करते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये लोग अब देखें ये लोग क्या करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन था कि 4 बजे फ्री हो गए, 7-8 बजे फ्री हो गए, तो ये
जॉब करते हैं। वुमेन जो है, जो बिल्कुल पढ़ी नहीं है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है? टोकरियां बनाते हैं, क्रोशिया का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे उस तरह के ये लोग काम करते हैं, ठीक है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, सो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच इंश्योर्स एडिशन टू द रूरल रिसोर्सेज इन रूरल एरिया एंगेजिंग लार्जली ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करके रूरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उसको यूज किया जा सकता है। आप देखो सर आपकी आवाज जा रही है बीच बीच में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Can you hear me? Yes sir. Now we Yes, can hear sir. you. Okay, सर पहले नहीं आ रही थी आवाज। ठीक है। हाँ जी, मधुरता मेहता वीडियो ऑन करिए। मधुरता मेहता वीडियो ऑन करिए। लास्ट कॉल टू मधुरता मेहता वीडियो ऑन करिए। मधुरता मेहता हैज लेफ्ट द क्लास। ये बात अच्छी है ना, पता लग जाता है कौन नकली से बच्चे बैठे हैं क्लास में। एक और छोड़ के इशिता, नकली। इशिता, 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 चलो रिमूव करना शुरू करें। इशिता लास्ट बार रिमूव। गुड मॉर्निंग सर। बस एक क्लिक ही रह गया था। इशिता मुझे रिमूव करना पड़ेगा बच्चे, थोड़े स्लीपिंग मोड में नहीं बैठना। माना आज बारिश हो रही है बहुत ज्यादा और हम लोग कंफर्टेबली पकोड़े खा रहे हैं सर वीडियो ऑन। थोड़ा क्विक रहना है, आवाज तो दे देनी है। इशिता क्या समझ लगी अभी तक कहानी? क्या क्या इनके सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है? इशिता, कैन यू हियर मी? इशिता, कैन यू हियर मी? कितनी मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. यस सर। इशिता बड़ा स्लो बोलती है। इशिता तुम स्लो क्यों हो इतना? इशिता, कैन यू हियर मी? यस सर। इशिता रिप्लाई नहीं कर रहे आप, नहीं सुना ध्यान से? कोई नहीं। रचिता एंड दिया शर्मा, रचिता एंड दिया शर्मा, रचिता एंड दिया शर्मा, लास्ट कॉल टू यू। रचिता एंड दिया शर्मा, रचिता एंड दिया शर्मा। क्लास में ये इसलिए कहता हूँ कई बार ना आप लोगों के फायदे की बात है कि कई लोग गलत एंटर कर गए होते हैं, वो मतलब मिस यूज कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। तो हम लोग, मैं वर्डिंग नहीं यूज करना चाहता, तो इसलिए किसी और के नहीं पे कोई बच्चा एंटर करो वो सही नहीं। रचिता, आर यू देयर? चलिए। यस सर। रचिता, आर यू गोइंग टू स्पीक? Actually, I'm रचिता, not well today. Yes sir. दिया, दिया, दो बच्चे में बाद में बात कर। चलिए, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये जैगरी का काम कर रहे हैं, शुगर का, पिकल का, ऑयल प्रोसेसिंग का, ऑयल सीड्स, फ्रूट जूस, डायरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट्स डायरी, नो इट्स डेयरी आना है, स्पेलिंग मिस्टेक है। डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉट डायरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा।
फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर फॉरेस्ट है, जैसे महाराष्ट्र है, झारखंड है, इन एरिया में वुड प्रोडक्ट्स का काम हो रहा है, बीड़ी मेकिंग का, कोयल इंडस्ट्री का, बैम्बू प्रोडक्ट्स का, हनी मेकिंग का, ईटिंग प्लेट्स फ्रॉम लीव्स। ठीक है, आपको पता है जर्मनी ने अभी एक पेटेंट करवाया लेटेस्ट, आप लोगों को पता है इस चीज का? जर्मनी ने, किसी ने सुना है लेटेस्ट? नो सर। वो मैं अगर आपको ढूंढ के भेजूंगा। जर्मनी ने लेटेस्ट कराया है कि उन्होंने ऑर्गेनिक प्लेट्स बनाई है, और शायद वो 1100 इंडियन करेंसी के हिसाब से एक प्लेट 1170 रुपए की है। ठीक है, ऑर्गेनिक प्लेट्स है। ऑर्गेनिक प्लेट्स पता किस चीज की बनी है? हरे पत्तों की। उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पंजाब में? क्या कहते हैं हम लोग पंजाब में? याद नहीं आ रहा सर। पत्तल कहते हैं ना, पत्तले, पत्तल, पत्तल, हाँ जी। पत्तल। और जो डूने होते हैं, है ना, उन्होंने यस। उन्होंने ऑर्गेनिक बाउल्स का नाम दिया है जो इस काम के लिए आते हैं। तो हमारा हिंदुस्तान तो पहले इसको यूज कर रहा है, और उन्होंने पेटेंट करवाया है, और पूरा वर्ल्ड उनकी तारीफ कर रहा है इस चीज के लिए कि वाओ दे हैव डन वंडरफुल थिंग, है ना। सोसाइटी नेचर की तरफ जा रही है, पर हम लोग हिंदुस्तानी तो पहले यूज करें। तो वही हनी मेकिंग ईटिंग प्लेट्स फ्रॉम लीव्स, ये हम लोग तो पहले बना रहे हैं, हमारा तो कल्चर ही वैसा रहा है। इनफैक्ट हो क्या रहा है, हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट वाले हमारी तरफ आ रहे हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज such as cement industry, stone crushing, wall coating powder, even जो माउंटेन कटिंग्स हैं, उस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में भी वो लोग जा रहे हैं। सैंड माइनिंग की तरफ भी वो जा रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ, वीविंग, स्पिनिंग, कलरिंग, ब्लीचिंग, क्रोशिएटिंग, केमिकल डाइंग, ये सब की तरफ भी वो लोग जा रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स जो कि इनका मेन है, मेकिंग ऑफ वुडन और बैम्बू हैंडीक्राफ्ट। हम लोग कई बार हिल स्टेशन पे जाते हैं तो बड़े शौक से लेके आते हैं, ये हैंडीक्राफ्ट्स है, ये आर्टिस्टिक प्रोडक्ट है। तो वो तो हमारा पंजाब का पहले ही कल्चर है, जो डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स है, टॉयज है, ठीक है, हैंगिंग मटेरियल्स हैं, ये सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट्स में आते हैं। इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, छोटे छोटे एग्रीकल्चर मशीनरी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, ये भी है उसमें। जैसे लोहार है वहां पर, ठीक है, वहां पर कॉबलर है, शू मेकर है, तो छोटे छोटे वहां पर काम हो रहे हैं। सर्विसेज भी वो दे रहे हैं आजकल। सर्विसेज क्या है? मोबाइल रिपेयर का काम शुरू हो गया आजकल, लेटेस्ट इंटरनेट के रिचार्ज करना, पेटीएम वगैरह, ठीक है, इंटरनेट जो है एक्सेसिंग, है ना, एग्रीकल्चर मशीनरी सर्विसिंग एक्सेट्रा, जो इन एरिया में काम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, अब उसी चीज को हम देखें तो ओनरशिप के हिसाब से कुछ लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं, they are individual entrepreneurs. There are certain other entrepreneurs which are working as group entrepreneurs. कुछ लोग क्लस्टर में काम कर रहे हैं और मिलके सोसाइटी की तरफ, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो क्लस्टर में, है ना, उनके प्रोड्यूस को सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं आजकल। तो ये हो गया। अगर आप एक बार पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाओ तो इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स जो है वो आपको वहां पर दिखाई देंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, और अपनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन्होंने बनाई। रूरल इंडस्ट्री को इस तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है। फार्म एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फार्म और फार्म से रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, ऐसी इंडस्ट्री। आर्टिशियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं, या दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो लोगों के लिए सर्विसेज के लिए काम करते हैं। There is a feature of this industry. In the rural industry, you are required to have very little investment. You are not required to make big, huge investment. Okay, with small investment, you can start a small venture. Like अगर आप जिसमें फिट होते हो, इलेक्ट्रीशियन का काम स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, आपको बेसिक टूल चाहिए, आप उसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लो जेस्टेशन पीरियड, इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा होता है, यानी आज आप इन्वेस्टमेंट करो तो हो सकता है कल को आपकी रिटर्न आने शुरू हो जाए। गांवों के लोग वेल यूनाइटेड, वेल निटेड होते हैं, तो एक बार किसी बंदे ने स्टार्ट करा तो लोग उसको वेलकम करते हैं और उसको काम देना भी शुरू कर देते हैं। जैसे प्लम्बर का काम है तो नेचुरली खेतों में भी प्लम्बर चाहिए और घरों में भी प्लम्बर चाहिए, है ना। मैसोन का काम है, किसी ने मैसोन का काम शुरू करा, राजमिस्त्री का काम, तो उससे घर बनवाने शुरू कर देते हैं। यूज ऑफ ट्रेडिशनल स्किल, इनके पास अभी भी ट्रेडिशनल स्किल्स जिंदा है, जिसके साथ हम लोग बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे ये अभी भी गांवों में आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, आप लोग जैसे अपने घरों में सर्दियों में बड़े शौक से खाते हैं, जैसे हम कहते हैं पिन्नियां बनाना, सुना है ना, घर में आपके बनती है कि नहीं, है ना, बनती है कि नहीं? यस और नो?
यस सर। यस सर। एक्चुअल अगर आप देखें तो ये लोग बहुत परफेक्ट है। तो आजकल क्या है, गांवों से बनी हुई ये मटेरियल शहरों में ट्रक्स में ट्रॉलीज में बना बना के बेचा जाता है। डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम होता है। ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं करते, ये डिसेंट्रलाइज कर देते। घरों में इनके सिस्टम क्या है कि जैसे एक जना सुबह उठ के पानी लगाने जाएगा खेतों को, दूसरा जना पेस्टिसाइड स्प्रे करने जाएगा, तीसरा जना जो है वो वीड्स हटाने जाएगा, ठीक है। इसी तरह चौथा बंदा दुकान खोलेगा, पांचवा बंद करेगा। तो घरों में इनकी फैमिलीज बड़ी फैमिलीज होती है जिसमें प्रोडक्शन सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो हैं आर इधर मास कंज्यूमर गुड्स और हैंडीक्राफ्ट्स, ये आपको पता ही है। यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल, ज्यादातर ये अपने ही आसपास का रॉ मटेरियल यूज करते हैं। अगर आप गांवों में जाओ ना तो आप इनसे पूछो कि आप कितने लोग जो हैं फॉर्चून का ऑयल यूज करते हैं, तो बहुत कम मिलेंगे। कहाँ ऑयल, सरसों का तेल ये कौन सा यूज करते हैं? जो कोल्लू से निकलता है, जो लोकल कोल्लू से निकलता है ना। और उसके जो वेस्ट है, जिसे हम वेस्ट कहते हैं, वो ये अपने खेतों में यूज कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो भी यूज कर लेते हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो बहुत कुछ इनको लोकली ही मिल जाता है। कैटर टू लिमिटेड मार्केट, इनकी मार्केट लिमिटेड होती है। जो गांवों में कोल्लू है तो वो उस गांव को ही कैटर करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिशियन है वो ज्यादा से ज्यादा आसपास के एक दो गांवों को कैटर करता है। तो इनकी मार्केट बड़ी लिमिटेड होती है, ठीक है। ये आपको जल्दी उस पे नहीं मिलेंगे, जस्ट डायल पे नहीं मिलेंगे। जैसे आप जस्ट डायल पे ढूंढो कि मेरे घर के आसपास कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है ना, तो आपको वहां पर मिल जाता है। प्रोडक्ट्स हैव यूनिक एंड एस्थेटिक नेचर, ठीक है। ये तो सभी हो चुकी बात है। नीड फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ से आपको समझ लगती है कि अगर हम इनकी स्किल्स को यूटिलाइज करें तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप कुछ ना करो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, पर उनको समझ नहीं लग रही। जैसे हम कल ही बात कर रहे थे स्टार्टअप इंडिया में, इन लोगों के पास मटेरियल है, आप इन्हीं का मटेरियल वर्ल्ड में हाइट्स पे लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप पंजाब के बने हुए हैंडीक्राफ्ट आप बहुत महंगे अब्रॉड बेच सकते हैं, बहुत अच्छी प्राइस पे अब्रॉड में बेच सकते हैं। तो ये लोग बना रहे हैं बहुत सस्ते। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे हैं पंजाब में जो काम कर रहे हैं। इनके बनाए हुए क्रोशिया के रुमाल, ठीक है, जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, वो आप मार्केट में बहुत हाई प्राइसेस पे बेच सकते हो, जिसमें इनको इक्वली पार्टनरशिप भी दे सकते हैं। इज इट अ गुड बिजनेस? डू यू फील? Is it a good business? Yes, Am I sir. alone in the class? नो सर। नो सर। बोर हो रहे हो? नो सर। यस सर। एक बच्चा सच्चा है मेरा शुरू से, ठीक है। इसमें जल्दी जल्दी ओवर कर दूंगा, ठीक है। नीड्स में देखिए कोई आपको मुश्किल लग रही है? नीड में कोई पॉइंट पूछने वाला है? नहीं है? एडवांटेज में यस और नो में जवाब देते जाओ। एक बार पढ़ो एडवांटेजेस में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के। सर क्लियर है। हो जाएंगे। सॉरी, हो जाएंगे सर। हो गया, ठीक है। आगे चले। प्रॉब्लम्स इन ग्रोथ ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। हो जाएंगे सर। ठीक है। रिकमेंडेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये कुछ एक मैंने लिखी है, बाकी आप बुक से देखेंगे। हो जाएंगे सर। गवर्नमेंट स्कीम्स है, सारी आपको नेट पे मिल जाएंगी। इनके थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करनी है पेपर के लिए। गवर्नमेंट स्कीम्स की आप प्रिपरेशन करेंगे। ये मैंने कुछ एक लिखी है। डन। ओके सर। डन सर। रोल ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
हो जाएगा सर। How to develop rural entrepreneurship? Advantage. Last, advantages of rural industrial projects. Yes, please. ये गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ भी आप ऐड कर सकते हैं। Done? Yes or no? यस सर। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। ओके, सो वाज इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, क्लास बी रेडी। मंडे क्लास नहीं होगी, कल छुट्टी है आपको, कल भी क्लास नहीं है। ट्यूसडे देयर विल बी क्लास। ओके, सो बी रेडी विद योर बिजनेस आइडियाज। आई विल बी आस्किंग यू, आई हैव गिवन प्रोजेक्ट। मुझे बहुत कम लोगों की मेल आई है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू मेल मी योर business ideas or project at my email ID, especially meant for this. Students, लिख लीजिए, students, STUDENTS, students final projects at gmail.com. student plural में है, students final projects at gmail. projects है, project भी नहीं, projects. परमजीत, why are you smiling? कुछ नहीं सर, परमजीत, मैं राती मेल करती थी ਤੁਹਾਨੂੰ। हैं? मैं मेल करती थी राती ਤੁਹਾਨੂੰ। Okay, okay, okay. Right. Students final projects at gmail.com. आपकी 2 असाइनमेंट हो चुकी हैं, उस बेस पे मार्किंग भी हो चुकी है। जिन जिन लोगों ने सेंड की है, जिन लोगों ने वीडियो सेंड करी है, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया सर। पीपीटी सर पीपीटी सेंड की थी और आपने बोला था एक फर्स्ट पार्ट है वो जिस मर्जी फॉर्म में कर देना, तो वो लिख के साथ ही पीपीटी के अटैचमेंट ठीक है। जिन्होंने थोड़ा मेहनत करी है उनको मिलना चाहिए ना प्रकृति। ठीक है ना, पीपीटी वालों को भी इक्वल मिल जाएंगे, नो वरीज। ओके, पर योर प्लान मस्ट बी सॉलिड, प्लान मस्ट बी सॉलिड, ताकि आप लोगों को आने वाले दिनों में मैं ऑनलाइन अगर वर्चुअल बिजनेस प्लान कंपटीशन में लेके जाऊं तो आपका एक प्लान लेके जाऊं और आप लोगों को साथ में लेके चलूं। ठीक है, क्योंकि मैंने तो जाना नहीं, प्रेजेंट करने बच्चों ने जाना होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ओवर हुआ। वेरी लाइट टॉपिक था। ट्यूसडे को हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, बिजनेस प्लान। ये हमारा नया टॉपिक होगा। और आप लोगों की एक और असाइनमेंट नोट करिए, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, इसको आप प्रिपेयर करिए, इसको आप प्रिपेयर करिए। जो आपकी लर्निंग्स हैं वो आपने मुझे भेजी। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपकी लर्निंग्स हैं उस टॉपिक से इंटरनेट पर बहुत मटेरियल अवेलेबल। डन? इट्स ओके। जल्दी खत्म करें क्लास, जल्दी जल्दी बोलिए। इट्स ओके सर, हैंड रिटन ही भेजनी है? सर। चाहे हैंड रिटन करके उसका पीडीएफ करके भेज दो, चाहे टाइप रिटन, ठीक है, चाहे बोल के पर ऑडियो सेविंग करनी पड़ेगी आपको, फिर वो सेंड करनी ओके हो जाएगी। ठीक है, व्हाटएवर यू लाइक। पीपीटी करना, पीपीटी में कर दो, जैसे भी करना है, टाइप करके भेज देंगे, जैसे आपकी इच्छा बच्चों। ठीक है, God bless everyone. Only few students have not been marked attendance. Among them are Diya Sharma, Rachita, ठीक है, गुरप्रीत, योगेश, तुम्हारी वीडियो नहीं ऑन हो पाई। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।